बारंबार उनको चुनाव में हराने का प्रयास किया। किस तरीके से वो वेस्ट बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए वो भी आप हम सबके ध्यान में है। आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और कैसे गांधी जी ने हस्तक्षेप किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चेयरमैन। लेकिन सभापति जी अब बैकवर्ड की by using the word backward में He is not committee yielding. Jairam ji, leader of the house, is not yielding. Good. ठीक है, I'll do that. But using the word backward. Nothing will go on record. Who are you? The Constituent Assembly ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि रिजर्वेशंस जनरली टू द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, और अंबेडकर जी ने कहा कि मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस और रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए। अब नेहरू जी के व्यूज क्या थे मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। नेहरू जी के व्यूज क्या थे जो उन्होंने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर्स को 27 जून 1961। पंडित नेहरू ने लिखा, आई हैव रेफर्ड अबव द एफिशिएंसी एंड टू गेटिंग आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल रट्स, रिजर्वेशन को ट्रेडिशनल रट्स। This necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste of this group or that group. The recent meeting we held here, at which the chief ministers were present to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Backwards were called as second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. The moment we encourage second-rate, we are lost. आप देखिए, see the mentality. आप इसमें से मानसिकता को आप देखिए, भाषा मानसिकता के बारे में बता रही है। और ये ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से हम सबको जानना चाहिए कि संविधान में के सभा में जो लोग थे और जिन लोगों ने बाद में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देश को चलाया, उनके मन में रिजर्वेशन के प्रति क्या भावना थी वह इससे प्रतिलक्षित होता है। He further writes, but if we go for reservation on caste basis, we swamp the bright and the able people and remain second rate and third rate. I am grieved to learn of how far the business of reservation has gone based on caste considerations. फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो नारा ही लगा दिया, ना जात पर ना पात पर। फिर हमारे राजीव गांधी जी, उनका क्या विचार था रिजर्वेशन पर? मैं पूरा पढ़ रहा हूं। वो तो आप बोलेंगे ना, मैं तो जात पर पात पर ही बोलूंगा। मैं आपका प्रोपोगेटर तो नहीं हूं। राजीव गांधी ने कहा द सेकंड पॉइंट, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा द सेकंड पॉइंट विच वी मस्ट बी a part of the national goal, and goal is casteless society. The constitution very clearly differentiates between scheduled castes and backward classes. Why did our constitution make us make this distinction? They had something in their mind. Why have we lost the distinction today? I agree with you. The reality is that caste counts for tremendous amount in this country. I don't disagree with that. But what is our goal? Is our goal casteless society?
If our goal is casteless society, surely every step that we take, we might have made mistakes in the past, and I am including myself in that if you believe in casteless society, every major step you may take must be such that you move towards a casteless society, and you must avoid taking any step which takes you towards a caste-ridden society. आजकल उनके सुपुत्र बहुत संविधान की किताब को लेकर के और आरक्षण और जाति जाति जाति, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? ये हृदय परिवर्तन हुआ या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? ये इसका उत्तर चाहिए। अब उसके आगे क्या है वो सुन लीजिए। नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country, will harm the entire country. ये हो गया आपका रिजर्वेशन पर आपका मत। जिन्होंने 55 साल राज किया उनका मत आपके सामने रखा। अब देखिए, आप काका कालेलकर रिपोर्ट आप लेकर के आए, आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और 1955 से लेकर के 22 साल तक आप बैठे रहे, आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं। आज आपको आतुरता हो रही है रिजर्वेशन की और आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं। 22 साल आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन कौन लेकर के आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। मंडल कमीशन आप 1979 मंडल कमीशन, 1 जनवरी मंडल कमीशन 1979। छह सितंबर और 6 सितंबर को राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन को तथ्यात्मक त्रुटियां का हवाला देते हुए, रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग को क्रियान्वयन करने का विरोध किया। राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन। आजकल आप मनोज जी उधर बैठे हुए हैं, जरा ध्यान रखिए। राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन रिपोर्ट वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी। आपने पिछड़ा वर्ग के साथ कितना अन्याय किया। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री, किसान पुत्र, बैकवर्ड प्रधानमंत्री, उनकी सरकार को गिराने का काम आपने किया। आपने, ये देवेगौड़ा जी हमारे आदरणीय बैठे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं। आपने इनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। इसलिए बैकवर्ड के चैंपियन बनने की कोशिश न करें। और अब अंबेडकर जी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा, वो ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। 27 अक्टूबर 1951 को रामदासपुर पंजाब में कहा, जस्ट टू सी द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू, he has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste even once. From this you can judge what sympathy the Congress party can have for our people when its leader Nehru is so adamant. उसी तरीके से अब ये रिलीजियस रिजर्वेशन पर मैं बोलना चाहता हूं। रिलीजियस रिजर्वेशन, सरदार पटेल जी ने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात कही, वो भी मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आई थॉट दैट आवर फ्रेंड्स ऑफ द मुस्लिम लीग will see the reasonableness of our attitude and allow themselves to accommodate themselves to the changed conditions after the separation of the country. But now I find them adopting same methods
which were adopted when the separate electorates were first introduced in this country. And in spite of ample sweetness in the language used, there is full dose of poison in the method adopted. सरदार पटेल ने बताया कि पहले विभाजन के पहले जो आपकी नीयत थी वो फिर से प्रतिलक्षित हो रही है और यह कंट्री के लिए हानिकारक है। और बाबा साहब अंबेडकर ने रिलीजियस रिजर्वेशन पर साफ कहा कि अंबेडकर ने कहा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप जाइए, अब गुड लॉट और बैड लॉट चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब क्या चोरी कर रहे हैं? आपने आंध्र प्रदेश में, आपने तेलंगाना में, आपने बैकवर्ड कास्ट में आपने 4% का रिजर्वेशन देने का प्रयास किया और जब उसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया तो आपकी सरकार ये सर्कुलर लेकर के आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डीओपीटी की कि 27% के रिजर्वेशन में 4.5% हमारे माइनॉरिटीज को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को जोड़ो। इस बात को, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया। लेकिन आप नहीं बाजा। आपने जो आज संविधान के निर्माताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप में डिस्कशन करके, मंथन करके, चिंतन करके यह तय कर दिया कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं होगा। इट इज रिटन। और मैं चाहूंगा कि इस पर बहस हो। देश को जानना चाहिए कि आप किस तरीके से संविधान के मूल बातों को तोड़ मरोड़ कर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। Not really. Nothing can go record. Nothing will go on record. सभापति जी, ये मैं इसको टेबल पर रख देता हूं, ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस मेमोरेंडम, subject reservation to other backward classes in civil posts and services of government of India, sub quota for minority committees. ये आपका सर्कुलर है। डेट और ये सर्कुलर डेट 22 दिसंबर 2011 और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये पिछले, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। Subject to correction, sir. What Jairam Ramesh is saying now is wrong. What the Gujarat Chief Minister gave was on the basis of economic backwardness. Economic backward. Here it is mentioned religious minority. They are two different categories. He is conflicting the two and misleading the House. I object to that. Jairam, one second. No, Jairam, one second. I give the floor to Jairam. Come on, what have you to say? Take only one. धर्म के आधार पर हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की है। हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं की है। जहां आरक्षण दिया गया है, जैसे कर्नाटक में, वो ओबीसी के आधार पर, सोशली एंड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, धर्म के आधार पर नहीं। धर्म निर्मला सीतारमण जी, ये गलत बोल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी, yes. Sir, sorry, sir. He may come up with any number of clarification, but he is misleading the House on this point. Even Dr. Lakshman, who has headed the Backward Commission, he should speak about it. This is misleading the House. Dr. Lakshman. I object to that. Dr. K. Lakshman. Sir, as per the Mandal Commission recommendations, there were some Muslim professionals included in the list. Apart from that, exclusively
Muslims have been identified in Andhra Pradesh and Telangana. Exclusive reservations are given in these both states. They are purely religious minority reservations, which is against the constitution of Ambedkar ji. And not only that, it is the same Congress, they have removed SC/ST reservations from Aligarh Muslim University and also JMI. It is the same Congress and UPA government. They have removed SC/ST reservation from this government, sir. Leader of the House. I think now the Congress people have got a very befitting answer from my colleague who is also the chairman of the Backward Commission, National Commission. मैं यहाँ ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको यात्रा बता दी 75 साल की, लेकिन इस यात्रा में कुछ जो अच्छे काम हुए हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और जब मैं अच्छी चर्चा की बात करता हूं तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बात चल रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको भी इंप्लीमेंट करना हमारा काम है। और मुझे ये हाउस को बताते हुए खुशी होती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की दृष्टि से जिसमें हम लोगों ने कहा कि जस्टिस विल बी गिवन टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल्सो द इंस्टीट्यूशंस जो इन सारी चीज़ों को देखती है। अब अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये बात सच्चाई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को वह आर्टिकल 338 बी के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और वह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हम सबको मिला है। उसी तरीके से 10% ऑफ रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और सोशल जस्टिस लाने का। उसी तरीके से वाल्मीकि को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का काम किया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अगर मैं पॉलिटिकल जस्टिस की बात करूं तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल जस्टिस देने का काम किया, तो वह भी मोदी जी की सरकार। SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस को राइट्स जो जम्मू कश्मीर में दिया गया वह भी पॉलिटिकल जस्टिस आर्टिकल 370 के तहत दिया। श्योर सर। उसी तरीके से विमेंस के रिजर्वेशन में हमारे सभी हाउस के लोगों ने उसमें साथ दिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो पॉलिटिकल विल प्रधानमंत्री जी ने दिखाया जिसमें सब लोगों ने साथ दिया और लंबे समय से लंबित नारी शक्ति वंदन विधेयक उसको पारित करके वुमेन का रिजर्वेशन देने का काम किया। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक वह भी करके जस्टिस देने का प्रयास हुआ। अगर मैं इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूं तो चाहे फिर वो मुद्रा योजना हो, जनधन अकाउंट्स हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो लखपति दीदी हो, फिर चाहे वो हमारे स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो। ये आयुष्मान भारत के बारे में एज हेल्थ मिनिस्टर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। 55 करोड़ लोग और उसमें 6 करोड़ वृद्ध जो जोड़ लिए गए, 55 + 6 यानी 61 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 लाख रुपए का प्रति फैमिली हर साल हेल्थ कवरेज देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरीके से आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सब ने डिप्राइव्ड क्लासेस को जोड़ने का प्रयास किया है और उनको मुख्य धारा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि इस ग्लोरियस जर्नी की यात्रा जो जर्नी रही है, यह यात्रा रही है, इसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमें एक बात से सजग रहना है दैट वी शुड बी केयरफुल ऑफ द बैड लॉट एंड वी शुड बी ऑलवेज होपफुल फ्रॉम द गुड लॉट। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और अंत में, सभापति जी, मेरे मन में जरा इच्छा हो रही है इसलिए कि मैं खाली ज्ञानवर्धन के लिए कि तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, चित्त शांत होता है, चित्त शांत होता है, और चित्त शांत होता है तो लक्ष्य साफ होता है,
और लक्ष्य तब साफ होता है जब नीयत साफ होती है, और जब नीयत साफ होती है तो नीति साफ होती है, और जब नीति साफ होती है तो देश आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।